Hello, good morning everyone. Welcome back once again to our online video of class 7th subject computer science. In last video we have already discussed about the functions formula used in the Excel, and in function we already have discussed about the mathematical functions: sum, product, mode, sqrt, int, power and count. Now today we will discuss about text functions, means the functions that we can perform on the text values, you means string values. For very first is the concatenate function. Concatenate function is just used to join together two or more different text values. For example, let's take one value is suppose Ram, another is Chandar, and if we want to join these two strings together, let me make it bigger. Let's increase the size so that you will understand better. Okay, let also do the header border as well. Now here in this cell E1, if you want to implement the concatenate concatenate first this separate by comma another. In this way you can join two, three or any number of strings you want to join together. Here we want only join two values, one is Ram, another is Chandar, and as a result we will get Ram Chandar. Now suppose if this value is suppose Sachin and this is Tendulkar, okay, then this will become Sachin Tendulkar. Now if you want to separate Sachin and Tendulkar by a space, then here you should have to use in concatenate. In this way you have to use double inverted comma. You remember that double inverted comma are used to represent a string or text value, space, close the double into comma, separate by 3 by comma. Okay, so it means there are three values that are going to be joined. One is b2 cell के अंदर जो value है, another is space and another is c2. Let's see what happened. Sachin Tendulkar, there is a space in between the values. Sachin and Tendulkar के बीच में space है यहाँ पे. Okay, next function is left function. Actually this function is used to specify number of characters from the left side of the text string. Suppose यही हमारी string था सचिन तेंदुलकर, इसी पे हम लगाना चाहते हैं लेफ्ट लेफ्ट साइड से इस पे लगाना चाहते हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट? सपोज 3 कैरेक्टर्स वी वांट. प्रेस एंटर. तो लेफ्ट साइड से जो 3 कैरेक्टर्स हैं SHC, that will get displayed. If you want to display number of 8 characters, then up to this you will get. You also have to remember that the space जो हम स्पेस डालते हैं that is also counted as a text value. So यहाँ पे SACHIN 6 7th आ गया आपका स्पेस और T is the 8th character. Okay, then next one is right. Simple, जैसे लेफ्ट काम करता है that right आपका काम करे कैसे कैसे करेगा. It will just give you the number of characters from the right side. Use this. Suppose this, then number of characters how much you want. Suppose 5 characters from the right side you want to display. From right side count ARKLU, these are the number of 5 characters. Okay students, then next is len. Len function is used to find out the length of a string. Suppose this is a very small, if it is a very big string or number, if we, this is a paragraph and it is asked how many number of characters this paragraph contains. For that we will use the len function, and len function will return the length of the string. Let's implement practically. कैसे करते हैं? len, हम इसकी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये करते हैं. So this सचिन तेंदुलकर is of 16th लेंथ. अगर हम सेम इस फंक्शन को नीचे तक कॉपी करते हैं
तो यहाँ पे देखो 0 मिला, बिकॉज देर इज नथिंग इन द सेल, देर इज 8, देर इज 5। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हो? इसका जो 8 कैरेक्टर लेंथ है, आप यहाँ पे देखो लेफ्ट फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ 8 आपने डाला था, यानी कि आपका वेरीफाई हो गया। यहाँ पे राइट में आपने 5 डाला था, यानी राइट साइड से 5 कैरेक्टर, तो आपका लेंथ भी 5 आ रही है। इट मीन्स ये आपका वेरीफाई भी हो जाता है डेटा, कि जो डेटा आपने लेफ्ट और राइट फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास किया था, दैट वाज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, देन we will use, next is upper and lower. Upper and lower, two functions that are used to produce the result in uppercase or lowercase. For example, upper case का मतलब होता है कैपिटल लेटर। तो अगर आपका जो सचिन तेंदुलकर है, here you will see only S and T are in capital letter, while all are in small letters. But if you will use upper function and apply on this, all the characters will get changed to the uppercase. Similarly, if you want to change all the characters in lowercase, okay, then use lower function, and all the characters you will get in lowercase. Got the point? So this was about the text functions. Next is sorry, logical functions. लॉजिकल फंक्शंस हमारे पास होते हैं जो किसी भी चीज को एक कंपेरेटिव एनालाइज करते हैं। वेरी फर्स्ट इज द मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन। मैक्स मीन एवरेज कहाँ से निकालते हैं? चलो ये तो एक स्ट्रिंग वैल्यू था, हम एक टेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं जिसमें नंबर सिस्टम है हमारा। इसको मैं थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ओके, और इसको मैं साइज इतना बड़ा कर देता हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। और इसको मैं आपका बॉर्डर इंप्लीमेंट कर देता हूँ। अभी देखो ये आपका डेटा है। अभी आपको मैक्स और मीन और एवरेज फंक्शन लगाना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे मैक्स लगाऊंगा, यहाँ पे मीन लगाऊंगा और यहाँ पे एवरेज। ओके, तो देखो इसको भी मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ। मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू अमंग द गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज। सपोज हमें हमें पता करना है कि मोहन जो है उसने किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स एंड वी विल सेलेक्ट दिस रेंज, यानी कि मोहन के ही सब्जेक्ट्स की रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें मोहन का डेटा निकालना है। एंड प्रेस एंटर की, आपको पता चलेगा कि जो 89 है वो आपका मैक्सिमम मार्क्स है। ओके, यानी कि उसने मैक्सिमम मार्क्स 89 ऑब्टेन किए हैं। ओके, उसके बाद अगर हम उसको मिनिमम मार्क्स, यानी कि सभी सब्जेक्ट में मिनिमम कितने हैं उसके, तो उसके लिए मीन फंक्शन लगाएंगे। सेम हम रेंज सेलेक्ट करेंगे और आपको मीन फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 52, हिंदी के अंदर उसको 52 मिले हैं। ऐसा ही अगर आपको एवरेज निकालना हो, सभी सब्जेक्ट की एवरेज, यानी कि इसको हम परसेंटेज ही बोलते हैं कई बार, तो क्या करते हैं, एवरेज AVERAGE एवरेज लगाएंगे और इसको हम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ से आपका एवरेज आ जाता है। ठीक है, मीन मैक्स एवरेज। मीन का मतलब टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू अमंग गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज, मैक्स टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू एंड एवरेज टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज। ऐसा ही आप कंपेरेटिवली आप ये पता कर सकते हो कि हिंदी के अंदर सभी स्टूडेंट्स में से किसको सबसे कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, या व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं मीन। आप हिंदी को सभी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और आपको मीन्स 52, और इसको कॉपी करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का मिनिमम मार्क्स आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो सिंपल मैक्स फंक्शन लगाएंगे। मैक्सिमम 89 हिंदी के अंदर आया है और बाकी सब में 89, 87, 89, 90 और 86, ऐसे आप इनको निकाल सकते हो।
थोड़ा इतना कर देता हूँ इसको। उसके बाद हमारा है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन कई बार हमें बहुत जरूरी हो जाता है। समटाइम्स वी वांट टू ऐड ए डेट, or sometime we want to add date and month, sometime we want to add date, month and year, all the things. So very first, if you want to enter in your sheet the today's date, then today function is used. Generally it is used to display the date and time. So here it will display the date 6/6/20, 6 जून 20। ओके, उसके बाद हमारा है, ये था टुडे फंक्शन। उसके बाद हम करेंगे डेट मंथ टुडे। अब एक्चुअली मंथ टुडे में क्या होता है, मंथ, उसके बाद टुडे फंक्शन लगाते हैं और उसको क्लोज करते हैं, तो इस तरफ आपको मंथ देगा। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि 6th मंथ, मंथ नंबर क्या है आपका 6। उसके बाद अगर हम लगाते हैं ईयर टुडे, आज का साल कौन सा है, ठीक है, उसके लिए लगाएंगे ईयर टुडे। तो आज का साल है 2020। ओके, उसके बाद हम चेक करते हैं डेट टुडे। डे टुडे, डे का मतलब है आज दिन क्या है, लाइक संडे मंडे ट्यूसडे क्या दिन है, तो उसके लिए लगाएंगे डे टुडे। टुडे इज डे नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे डे नंबर 6 दे दिया इसने, बिकॉज टुडे इज सैटरडे ऑब्वियसली, हाँ इट इज 6। यहाँ पे डे, इट रिटर्न द करंट डे, यानी कि 6 तारीख। ओके, डेट दिखाता है इसका मतलब ये आपको, डे मीन्स डेट, नॉट द संडे मंडे वाला डे नहीं, ये डे आपका है डेट वाला। उसके बाद हम करते हैं चार्ट्स इन एक्सेल। So first of all, we have to understand what are the charts. Actually, charts are the effective way to represent data in a pictorial form. Sometimes it is very difficult to understand data in a series like here. Sometimes it will take a lot of time to understand what data is this and what is the meaning of this data, how the data are arranged. But so if the same data is represented in the form of a chart, मीन्स एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर आपको डेटा मिल जाता है, तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द कंपैरिजन एंड टू एनालाइज द डेटा इफेक्टिवली. So for that use we will use the charts in Excel. There are different kind of charts available in Excel. We will discuss one by one. Some commonly used chart types are, very first is the column chart. And before going to the type of charts, we will understand the components of a chart. A chart have very first component is its title, because title describes about the main purpose of using the chart, means what is the aim of using the chart. Then x-axis, x-axis is a horizontal axis, you know very well, जो parallel to the earth होता है, like वो उसको horizontal बोलते हैं. Horizontal axis of the chart is also known as a category axis. जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, so this is the chart. Here sales of bicycle is the chart title, where x axis जो है यहाँ पे, ये देखो जो वैल्यूज हैं, क्लासिक, गियर, हाइकिंग, ठीक है, एडवांस्ड, ये आपके एक्स एक्सिस है। उसके बाद आता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए वैल्यू एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस है, लाइक जहाँ पे आपका 0, 500, 1000, 1500, 20, 2000, ये जो वैल्यूज हैं, दीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट वाई एक्सिस, ऑल्सो नोन एज द वैल्यू एक्सिस। आफ्टर दैट एक प्लॉट एरिया होता है, इट इज ए रेक्टेंगुलर एरिया बाउंडेड बाय द टू एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका होता है चार्ट एरिया। उसके बाद डेटा सीरीज। डेटा सीरीज क्या होते हैं आपका, these are the set of values represented by the bars or slices depending upon the type of chart. यहाँ पे देखो, ये जो बार हैं आपके, ये जो कॉलम खड़े हैं यहाँ पे, small or bigger, these all are known as data series. These represent the actual value in the chart. Then data label. Data labels includes data values, category names. जो labels हैं, like classic, gear, hiking, जो उसकी heading को show करते हैं parallel to x axis, these all are known as data labels.
Grid lines. Grid lines actually represent plotted against horizontally or vertically depending upon the chart type, and generally these are used to understand the values. Like ये जितने भी लाइन है, जैसे ये लाइन है आपकी ड्रॉ होकर रखी है, दिस लाइन इज अगेंस्ट 3500 वैल्यू, दिस लाइन इज अगेंस्ट 3000 वैल्यू. सो दीज ऑल आर ग्रिड लाइंस. ये आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट टाइप. उसके बाद लीजेंड्स. लीजेंड्स आर द कीज which shows the meaning of the color and symbols used in the chart. अब देखो, अगर हमें ब्लू, ये जो बार दिया है, ये जो ऑरेंज बार दिया है, we cannot understand by color until or unless the color meaning is defined. तो यहाँ पे देखो दिखाया गया है, जो ब्लू है दैट इज बाईसाइकिल सोल्ड के लिए है, और जो ऑरेंज है बाईसाइकिल पर बाईसाइकिल प्राइस है. ठीक है, तो हमें कंपैरिजन हो जाएगा कि क्लासिकल जो साइकिल है वो कितनी सोल्ड की गई है. बाईसाइकिल सोल्ड ब्लू कलर दिखाता है, यानी कि 2000 सोल्ड हो चुके हैं, एंड प्राइस पर बाईसाइकिल कितना है, 1000. ओके, तो ऐसे आपको, जब तक आपको लीजेंड्स नहीं मिलेंगे चार्ट के ऊपर, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स और कलर्स यूज्ड इन द चार्ट. आफ्टर दैट चार्ट एरिया, जो एक्चुअल प्लॉटेड एरिया होता है, that is the chart area. Then how we can create a chart? To create a chart, we first have to a data arranged in a excel file. कैसे करते हैं? सपोज मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए. ये एक डेटा है जिसमें कुछ 4-5 स्टूडेंट्स के नेम है, मोहन, रमेश, लोकेश, पंकज, साहिल, जिनके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको एंटर्ड किए गए हैं. अभी मुझे एक चार्ट क्रिएट करना है, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा. जिस डेटा को हमें चार्ट के अंदर इंक्लूड करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट पे जाएंगे. दिस इज द चार्ट एरिया वेयर वी हैव टू इंसर्ट द चार्ट. एक बेसिक चार्ट टाइप इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आपको. ये वाला देखो, इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ. ओके, दिस इज द चार्ट. अब इस चार्ट में देखो क्या दिखा है, मोहन जो है, यानी कि जो भी वैल्यूज आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर हैं वो आपके सारे लीजेंड्स के ऊपर हैं. वो आपको डेटा सीरीज आपको बताती है कि मोहन जो है उसने 4 सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. अब ये 4 सब्जेक्ट तो हमें पता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ब्लू कलर इज फॉर व्हाट सब्जेक्ट? वो पता चलेगा हमें यहाँ से. ठीक है, नीचे जो दिए गए हैं ना डेट, इसमें लीजेंड्स, इनको बोलते हैं लीजेंड्स, डेटा लेबल और लीजेंड्स. तो डेटा लेबल आपके क्या है, मोहन, रमेश, लोकेश, और लीजेंड्स आपके हैं हिंदी आपका ब्लू कलर के लिए है, ऑरेंज के लिए आपका इंग्लिश है, फिर मैथ्स के लिए आपका ग्रे कलर है, और येलो कलर जो है आपका साइंस के लिए है. ठीक है, सॉरी ये ऑरेंज नहीं है, ये मैरून कलर भी बोल सकते हो आप उसको, लाइट रेडिश भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे देखो, अलोंग वाई एक्सिस मार्क्स एंट्रीज आर देयर. मैक्सिमम इसने 100 मार्क्स को लिया है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 90 थी, तो उसने उसका 10% इंक्रीज करके ले लिया. यहाँ पे देखो, जो मोहन है उसने हिंदी में कितने हैं, 50 से थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, यानी कि 52, और एग्जैक्टली 52 है. अब एक चीज नोट करने वाली है कि इफ यू विल वांट टू चेंज द चार्ट बार अप और डाउन, अगर चार्ट की जो बार्स हैं वो अप और डाउन करना चाहते हो, मीन्स जो वैल्यूज आपको चार्ट में दिख रही हैं उन वैल्यूज को ग्राफिकली अप और डाउन करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक चेंजेस इन द मेन एक्सेल शीट. सपोज अभी जो मोहन के हिंदी के अंदर जो है वो 52 मार्क्स के लिए बार आपका दिखा रखा है. नाउ इफ ही गॉट 92 मार्क्स, ऑटोमेटिकली देखो आपका बार ग्राफ इंक्रीज हो जाता है. ऐसे ही साइंस में इसने 42 लिए हैं साहिल ने, ये वाला देखो लास्ट वाला कॉलम, ये वाला. उसके लिए क्या करता हूं मैं, अगर इसने सपोज 95 ले लिया, तो जो ही एंटर करूंगा इसका बार ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा. सो whenever you will change in the main excel sheet, the chart will change accordingly. Sorry. Then creating a chart we have done. Different chart types we will have to analyze. Very first is chart type.
that time में आपका आता है लाइन चार्ट. Actually line chart is used to show a trend of data over a period of time. जैसा कि ये जो चार्ट है वो जनरली आपका दिखाता है कि आपने क्रिकेट अगर मैच देखा है लाइव तो वहां पे आपका ये लाइन चार्ट आपका चलता है. वो ये एनालाइज करता है कि किसी भी एक टीम का किसी पर्टिकुलर ओवर के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ रन्स दे मेड एंड हाउ मच देयर विकेट फॉल. तो वो सारा कंपैरिजन जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम टीम 1 का और टीम 2 का दोनों का आपको पैरेलल दिखाते हैं. तो दैट इज लाइन चार्ट. सिंपली अगर आपको इसको डिफाइन करना चाहोगे तो क्या करोगे? इट इज यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम along x-axis and y-axis. Dots are used to connect these kind of chart. Column chart, very simple chart used to data in the form of vertical bars. Along x-axis they represent the categories and along y-axis they represent the data values. वेरी सिंपल होता है कॉलम चार्ट. जैसे मैंने अभी आपको ड्रा करके दिखाया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम चार्ट. इसी को अगर इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द लाइन चार्ट तो सिंपली इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो लाइन चार्ट है आप ये लाइन चार्ट आपका रह जाएगा. ठीक है, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस पूरे चार्ट को. अच्छा, चार्ट टाइटल में बताना भूल गया. यहाँ देखो चार्ट टाइटल. चार्ट टाइटल क्या है? मार्क्स एनालिसिस क्लास. जो भी आपको XYZ कुछ भी डालना है आप इससे कर सकते हो. तो ये आपका चार्ट टाइटल हो जाएगा. ठीक है, ऐसे आप चार्ट टाइटल चेंज कर सकते हो ना. अगर हमें चार्ट को डिलीट करना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक लाइन चार्ट लेके आना है तो सिंपल ये आपका लाइन चार्ट है. ये देखो लाइन चार्ट में क्या दिया, जो ब्लू कलर है वो हिंदी के लिए है और मोहन को जो हिंदी में मिले हैं वो इतने मार्क्स मिले हैं. ये देखो उस जिस लाइन को सिलेक्ट करोगे जहां पे वैल्यू है वहां पे आपको पॉइंट एक डॉट मिल जाएगा. इससे क्या है आपको उस डेटा को रीड करना इजी रहेगा. उसके बाद ये वैल्यू, ठीक है, अलग अलग आपके चार्ट्स की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी. उसके बाद ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट हैं. आप यहाँ पे वैल्यू को भी शो कर सकते हो ऑन द साइट कि ये पॉइंट 92 को शो कर रहा है, ये पॉइंट 86 को शो कर रहा है, ये 57 को, ये 73 को. ऐसे अलग अलग पॉइंट्स जो हैं आपको वैल्यू के साथ भी दिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये आपके डिफरेंट एडवांस जो टूल हैं ऑफिस के उनकी हेल्प से आपको ये इजी एनालिसिस ऑफ डेटा अवेलेबल होता है. Then pie chart. This chart is a circular chart actually and divided into number of sectors where each sector is displaying the data related to the whole circular area. यहाँ पे ये भी आपको कई बार देखते हैं कि किसी बैट्समैन का जब वो एनालाइज करते हैं कि सपोज उसने एक 100 रन बनाए तो हाउ मनी रन ही मेड इन द लेग बाय, हाउ मनी ऑफ साइड, लॉन्ग साइड, स्ट्रेट. वो जैसे भी वो रन बनाते हैं वो उसका एनालाइज कर लेते हैं कि आउट ऑफ टोटल उसने किस एंगल पे कितने रन बनाए. उसके बाद आता है बार चार्ट. बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट आर वेरी सिमिलर चार्ट. डिफरेंट क्या है कि बार चार्ट आर हैविंग ए bar or rods along the horizontally, while in case of column chart these bars are standing perpendicular यानी कि vertically ये होते हैं और इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. उसके बाद आता है एरिया चार्ट. एक्चुअली एरिया चार्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा ग्राफिकली. ये जो एरिया चार्ट है वो आपका ग्राफिकली एक क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. जिस पॉइंट पे वो डेटा होता है उसी पॉइंट से वो स्टार्ट हो जाता है. सपोज यहाँ पे देखो 2000 इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे है और उससे अगले वाला जो डेटा है जो बाईसाइकिल सोल्ड ब्लू कलर है और प्राइस पर बाईसाइकिल जो आपका है वो आपका लाइट रेडिश कलर है. यहाँ पे 1000 ये जो एरिया है this area is used to represent the price of the bicycle and this area is used to how many bicycle of different kinds are sale. These charts are based on the feature of the line chart. They basically emphasize the area between the line and the axis with the help of colors, text and pictures. Scatter chart. देखो स्कैटर चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट भी आपका कंपेयर करता है डेटा को
और स्कैटर चार्ट क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ में कंपेयर करके दिखाता है आपको एक ही लाइन के ऊपर। Scatter chart also shows an XY scatter plotting. They show the correlation between the two set of values. इसमें correlation का पॉइंट आ जाता है। Only difference is that correlation means एक ही लाइन के अंदर, सपोज यहाँ पे देखो ये वाली लाइन है, इस लाइन के अंदर 1000 रुपीज जो है प्राइस पर बाईसाइकिल है और कितनी बाईसाइकिल सोल्ड की गई हैं वो आपको इस कलर से दिखा रहा है, 1000, यानी कि 1000 ही बाईसाइकिल सोल्ड हुई हैं, 1000 ही उसका प्राइस था। यहाँ पे 1200 उसका प्राइस है और यहाँ पे इस सीरीज में कोई भी आपकी डेटा बाईसाइकिल सोल्ड नहीं हुई है। उसके बाद जितने भी अलग अलग डेटा वैल्यूज हैं, 2000 वाली कितनी हुई है, 2500 वाली और फिर 3000 वाली, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कैटर चार्ट आपका ये है। उसके बाद इफ यू वांट टू मेक चेंज फ्रॉम वन चार्ट टाइप टू द अनदर चार्ट टाइप, तो आपको कैसे करना है, सिंपली आप ओपन करेंगे चार्ट को, सपोज यही आपका चार्ट है, इस पे राइट क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑप्शन को पा सकते हो चेंज चार्ट टाइप। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑफ अवेलेबल चार्ट्स मिल जाएंगे। सपोज लाइन चार्ट आपको नहीं चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग आपको स्कैटर चार्ट चाहिए, तो स्कैटर चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन ये रहा। सपोज आपको ये वाला ओके करना है, ओके किया, तो दिस इज द स्कैटर चार्ट। इस स्कैटर चार्ट में क्या होता था, सारी डॉट्स के पॉइंट्स में आपको दिखाई मिल जाएंगे और सारी दोनों डेटा सीरीज एक के साथ कंपेयर हो जाएगी। इसलिए जो चार्ट है, सिलेक्शन ऑफ चार्ट टाइप इज मच मोर इम्पोर्टेंट व्हाइल डिस्प्लेइंग द डेटा टू द ऑडियंस और टू द जो भी आपको इसको प्रेजेंट कर रहे हो उसको। आपका सबसे जो बेसिक मेथड होना चाहिए किसी भी चार्ट को डिस्प्ले करने का, दैट इज उसको एक साइट में एक देखने भर से ये पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन यू वांट टू डिस्प्ले थ्रू दिस चार्ट। अगर आप ऐसा एक कम्प्लेक्स लाइक स्कैटर चार्ट आप एक उसको लेके दिखाना चाहते हो, दैट पर्सन विल गेट कंफ्यूज्ड, व्हाट डू यू मीन वांट टू डिस्प्ले। बट अगर आपको कोई एक इजी फॉर्मेट का आप चार्ट लेके आते हो, जैसे लाइक मैं इसको और चार्ट टाइप कर देता हूँ, सपोज मैं इसको कर देता हूँ, कॉलम तो अपना था ही, चलो बार में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो बार चार्ट को अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी है, कॉलम के और बार को इजी है, क्योंकि यहाँ पे देखो साहिल वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लॉट हो गया और जो वैल्यूज थी वो आपकी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लॉट हो गई। और ये सब्जेक्ट आपके लेजेंड्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे है मार्क्स एनालिसिस, ठीक है, ये आपका चार्ट टाइटल हो गया। उसके बाद आप और कोई जैसे अब दूसरा टाइप है, सपोज पाई चार्ट आप लेना चाहते हो तो पाई चार्ट भी आप ले सकते हो। अब पाई चार्ट में देखो क्या हो गया, पाई चार्ट में आपका हो गया कि जो साहिल है, साहिल को 70, यानी कि टोटल जो ऑल द, इसमें क्या हो गया कि सारे मार्क्स का सम हो जाता है और पूरा एक टोटल मार्क्स बन जाता है, फाइनल मार्क्स ग्रैंड टोटल बोलते हैं। उस ग्रैंड टोटल का कितना परसेंटेज मोहन ने मिला है, कितना परसेंटेज रमेश को मिला है, कितना लोकेश को मिला है, चलो एक बार निकाल के देखते हैं। एवरेज, अगर हम इसको लगाते हैं एवरेज, तो क्या अपना 81 आता है मोहन का, ठीक है, मोहन, और ये आता है आपका ऐसे इस फॉर्मेट में आपका एवरेज आता है, ठीक है। पंकज, साहिल, ओके। अभी देखो इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो पाई चार्ट है उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज का कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या एनालिसिस है, मैं आपको इस चार्ट को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे जो मोहन है उसके ये सिर्फ ओनली 2 कॉलम्स आर डिस्प्लेड यूजिंग ए पाई चार्ट। तो यहाँ पे इसका मेन मोटो कब होता है हमें इसको यूज करने का, कि हमें ये एंटर करना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि बैट्समैन ने किस साइड में कितना स्कोर किया, तो यहाँ पे मोहन के जगह लिख देंगे लॉन्ग साइड, ऑफ साइड, स्ट्रेट, ठीक है, तो उसके साइड में इसके मार्क्स एंटर कर देंगे, तो ऐसा आपको पाई चार्ट का एनालिसिस दिखा देगा। अभी यहाँ पे देखो, देखने वाले मोहन जो है
उसने 92 मार्क्स लिए हिंदी के अंदर, और मोहन के लिए कलर कॉम्बिनेशन कौन सा, ये वाला पार्ट। उसके बाद है रमेश, रमेश ने 86 लिए हैं, ये वाला पार्ट है। उसके बाद 87, फिर 70। पाई चार्ट के अंदर भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो इसमें से, जो भी आपको बेटर लगता है, क्योंकि जो जो नई नई एडवांस चीजें आ रही हैं ऑफिस के अंदर, हम इसको यूज करना हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट वन वाज चेंज चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट को अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉरी डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन क्विक लेआउट, यहाँ पे आपके लेआउट्स हैं, कोई भी लेआउट आप सिलेक्ट कर लोगे इसमें से, वही जैसे मैं आपको जस्ट एक बार उसको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे आप चार्ट लेआउट चेंज कर एनालाइज कर सकते हो। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं सपोज एक दूसरा टाइप का चार्ट इंसर्ट करता हूँ, सपोज मैं 3D भी नहीं करूँगा, ये वाला भी नहीं, चलो कॉलम ही इजी है। ये आपका 3D के अंदर है, ये आपका 2D के अंदर है, और 2D में भी इस पे कुछ आपके फॉर्मेट थे, सिंपल वाला ले लेता हूँ मैं, 2D में भी सिंपल। ओके, अब यहाँ पे इसका लेआउट हमें चेंज करना है, तो डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन में क्विक लेआउट, क्विक लेआउट में आप कोई भी इसका लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि जो ही मैं इसको वेरी कर रहा हूँ, आपका चार्ट जो है लेआउट वो वेरी हो रहा है। कहीं आपको लीजेंड नीचे दिख रहे थे, कहीं आपको लीजेंड साइड में दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं एक्सिस टाइटल का नाम भी आ रहा है, आप इन एक्सिस टाइटल को नाम भी दे सकते हो बाद में। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के लेआउट कहाँ से करने हैं, डिजाइन पे जाएंगे, क्विक लेआउट, आई एम यूजिंग ऑफिस 13, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्विक लेआउट मिलेगा। इफ यू आर यूजिंग प्रीवियस वर्जन तो आपको चार्ट लेआउट नाम से ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद चेंज चार्ट डिजाइन, डिजाइन का भी मैंने वहीं से आ गया, डिजाइन टैब में जाके चार्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। So this was all about in this chapter, and we will discuss the exercise. So first of all, which one of the cell reference can be included in relative reference? Relative reference के अंदर वैसे मैं इनका सॉल्यूशन आपको शेयर कर देता हूँ, अभी वीडियो के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैंने रेडी किया हुआ है, मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्रिपेयर योर नोटबुक, do the exercise, and this application based questions, these are for you, I have left for you, you have to do yourself। ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल वर्क होता है रियल लाइफ में, कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें आपको उस सिचुएशन को कैसे सॉल्यूशन करना होता है। लाइक एग्जांपल देता हूँ कि निधि हैज मेड ए स्प्रेडशीट फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, which feature should she use to keep mark sheet updated if she has to change marks in one of the subject for any student? तो इसके लिए आपको वो चीज बतानी है कि कौन सी मार्कशीट में कैसे अपडेट करेंगे, कौन सी सीट के अंदर क्या चीज डालेंगे, रिलेटिव रेफरेंस डालेंगे कि एब्सोल्यूट डालेंगे, कि एक जगह चेंज कर दे तो बाकी जगह भी चेंज हो जाए, तो वो क्या होगा, आपको भी ये चीजें बतानी है, रिलेटिव होगा कि एब्सोल्यूट होगा कि मिक्स होगा। ऐसे ही आपको एक क्रॉसवर्ड आपके लिए छोड़ा है मैंने, बाकी बाकी सारे सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपका लैब प्रैक्टिकल है, ये सेम जैसे मैंने एक्सेल शीट के अंदर आपको मार्क्स का एंट्री करके दिखाया, ऐसे ही आपको सेम शीट बनानी है, और उसके अंदर कुछ वैल्यू अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी वैल्यू, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट डालना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, फिल अप डिटेल्स ऑफ 5 आइटम्स, देयर क्वांटिटीज एंड यूनिट प्राइस, आपको ही करना है। यूजिंग प्रोडक्ट फंक्शन कैलकुलेट द अमाउंट फॉर ईच आइटम। यहाँ पे देखो अमाउंट आएगा, वो कैसे आएगा अमाउंट, जितनी भी क्वांटिटी आप डालोगे यहाँ पे, वो क्वांटिटी विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट प्राइस। सपोज आइटम नेम है आपका पेन, क्वांटिटी आपने 15 ऑर्डर किया, यूनिट प्राइस पर पेन 10 है, 10 इंटू 15 यहाँ पे 150 आना चाहिए। उसके बाद यूजिंग सम फंक्शन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कहाँ से आएगा, ये वाला जो टोटल है, इसके
पैरेलल इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो सेल है यहाँ पे आपका टोटल आएगा। यूजिंग फॉर्मूला कैलकुलेट जीएसटी अकॉर्डिंग टू द गिवन रेट। तो जीएसटी लगेगा 5% का, टोटल का 5% लगेगा, तो जीएसटी यहाँ बताना है और फिर यहाँ पे इनवॉइस यानी कि ग्रैंड टोटल जो बोलते हैं वो करना है। तो ये प्रैक्टिकल आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे लेके भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि ये हमने वैल्यू डाला और ये सारे फंक्शन लगाने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर the video, and I hope you will complete your notebook very soon. Thank you very much.